I'm sorry, sir. It's not possible, sir. My manager will not accept it. Okay, madam. Then do whatever you want to do. I am unable to pay. There is a terror into the livelihood of my life, and you are asking about the CIBIL impact. What the heck the CIBIL will do for me, madam? On basis of CIBIL, you only cannot get the loan. You also submit a manual document to the company. Company will do their manual assessment. Then only they will provide the eligibility to the customer. Customer I'm concerns. not talking anything No, nonsense, you sir. are very You're taking nonsense. this I as have been seen such kind of nonsense lady in my whole life. Never seen. Company has a RBI guideline. Company has a RBI fair practice code. RBI even says if a customer is going through with such kind of financial and medical distress, company should cooperate and provide a holiday period to the customer. So they can take some time, arrange the money and repay to the company accordingly. तो आपको भी आरबीआई ने यही बोला है कि अगर किसी कस्टमर का जेन्युइन रीजन है तो कंपनी को कोऑपरेट करना, फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत कस्टमर को थोड़ा टाइम दे देना, पैसा अरेंज करके वो धीरे धीरे करवा दे. वही एक प्रोसेस है मैडम, लीगली जो प्रोसेस है आरबीआई की तरफ से टू ऑल द बैंक्स एंड लेंडर्स. अभी आप बोलोगे कि नहीं हम तो कॉल करते ही रहेंगे आप जब तक पेमेंट नहीं कराओगे. दैट मीन्स व्हाट कि आपने ये कॉल पे खुद ही साबित कर दिया कि हम कोऑपरेट नहीं करने वाले. चाहे आप करने वाले हो, बेड रेस्ट पे पड़े हो, आपकी कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, मैं आपकी क्यों सुनूं? देयर इज नो बेनिफिट एंड वैल्यू एडिशन फॉर द कस्टमर अगर वो आपकी सुनेगा. आप तो बस पेमेंट करोगे. तो एक काम करते हैं, 20 तारीख को भी नहीं करेंगे. अब तो हम इसको जो है 1 साल 1.5 साल बाद सेटलमेंट करवाएंगे. 80-90% का डिस्काउंट लेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे और 10% 15% कंपनी को देके कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे. मैडम आपको इतनी सी जानकारी नहीं है. मैं अभी आपसे वापस पूछ रहा हूँ, आर यू डीआरए सर्टिफाइड और यू आर नॉन डीआरए? आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता बैंकिंग एटिकेट्स क्या है, आपको पता नहीं कि बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, आप कैसा बात कर रहे भाई? दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट. और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें. धन्यवाद. Good afternoon. Good afternoon, this is Stanley calling. I'm speaking. Speaking, tell me what happened. Sir, I'm calling from 5 and your payment has been pending right from 2 days. Okay. Will you make a payment? I'll be in a call. We will make the payment, but not now. It will take till 25th. Why, sir, 25th? Because of business loss, job loss, medical loss, multiple debt. Sir, let me know one reason, sir. I have multiple reasons, You're a madam. jobless, sir, current? No, sir, what I'm asking you means current you're jobless. Okay, you are asking one by one. Let me let you know the reason, right? So first is job loss. Yes, sir. I have been job loss from last 6 to 7 months. Okay. Second is a business loss. One of my business colleague defrauded and booked the loss into the business. Third is medical issue. I am a hypertension, hyperactivity, BP, anxiety, depression patient. And fourth is multiple debt. I have many loans and credit card, up to 60 to 70 lakh rupees loans and credit card on me right now. I am unable to pay any of the bank as of now. There is possibility till 25th I will be having some arrangement, so you please call back. Okay, sir. Let me ask you one thing. So you're a jobless from 6 to 7 months, right? After the jobless, you are still in business. Previously only you was doing No, yaar. Not after the job loss I started business. My business was already 5 years old. Okay. Okay. But recently it got into loss because the colleague I was working with, he defrauded. He ran away with all the money and clients and businesses and left me alone with the business loss of 25 lakh rupees. Okay, sir. Okay, I'm really very sorry to hear this. And you're telling like 6 to 7 months you're a jobless, right, sir? And previously 2 months you paid on time, right?
Yes, I borrow it from relative friends, but now they are also asking for their money back. Okay, you didn't get any new job, sir? No, madam, I am almost 55 years old. Company wants someone who is at 20 or 30. Nobody is providing me a job. And you're not doing any kind of part-time job, sir? No, madam, I don't have any opportunity. I am a heart patient, madam. I cannot work for more than outfield. I only can do a laptop desk job. I was working in IT now. So due to the IT major layoff, I lost the job. Okay, sir. And how you're managing your daily expenses, other expenses, everything, sir, from 6 to 7 months? I'm trying. Someone can donate me. I'm trying to take the help from fundraiser. I didn't get you, sir. I'm trying to take help from fundraiser. Somebody can donate me so I can go for the medical expenses into the hospital or medical doctor. Currently, I'm trying to get my prescription from Hakim. You know Hakim? No, sir. Ayurvedic. Okay. Yes. Okay, sir. And I can understand your situation, sir, that you're jobless and you are having a medical issue, everything. Yes, madam. But I don't think I can survive, madam. 2 days. I don't think I can survive, madam, this life. You pray for me and call me back till 25th. Sir, I'm sorry, sir. We can't provide you time till 25th, sir. So, madam, if you are not cooperating with the customer, then this is not the fair practice code. You should follow the fair practice, yaar. If customer is in so much of bad condition, you are still staying upfrontly that we cannot provide you the time. You cannot say like this. Customer is in worst condition. He is unable to even manage the medical expenses. Madam, how you can say that we cannot provide you the time? You have to provide the time, madam. Okay, sir, give me a second. First listen, sir, what I'm telling. What happened, madam? Why I'm telling you means I can't provide you time because already we have given you 2 days of time. And 2 days, in 2 days what will happen, madam? I need at least 2 years. Okay, sir. Clear within 4 days. I will be clearing in next 15-20 days. I need more 15 to 20 days. Call me back till 25th. I'm sorry, sir. It's not possible, sir. My manager will not accept it. Okay, madam. Then do whatever you want to do. I am unable to pay. Sir, and let me know one thing. You are a jobless. On what basis you have taken the loan, sir? On basis of salaried. Sir, you're telling you're jobless from 6 to 7 months. You have taken the loan on? On 2nd of February. February 24th, you have taken loan, sir. That's what I'm asking you. In which phases? So I was serving a notice period for 5 months. You are serving notice period for 5 months. Yes. Let me know one thing. From which month you're jobless, sir? Arey yaar, see, if you are working in a big company, MNC's company, 1 year earlier they will let you know that your job is not secure. So there might be chances that you can lose the job. Okay. 1 year upfrontly they will tell you the same thing. Okay. So I was serving a notice period for 5 months. The moment I took the loan, I was in the job. I was doing a job, but I was serving a notice period. And notice period is something which is temporarily. It is not something that you are going to lose the job for sure, 100%. It is not like this. If you are serving a notice period and you are doing your job good, so maybe company can shift you to somebody else and into the another processes. But they did not. And they asked me to leave after 6 months. So the moment I took the loan from your company, I was in the job. ठीक है? Okay, sir. Okay.
घुमा दिया आपको मैंने. I mean, sir, see, even I am also trying to help you, sir, because you do delay. Yeah, you are trying to help me, but I cannot help you, madam, with the payment. Because your CIBIL is getting impact, sir. And Arey yaar, I will forget about the CIBIL. What rubbish you can talking about, madam? Okay, sir. What is CIBIL, you're madam? thinking that CIBIL is very rubbish to you because if you No, want to take you are talking to a customer. Customer is into medical issues, such kind of medical issue. Do you understand what is hyperactivity? Sir, I'm explaining you the consequences of delaying of Arey yaar, payment. what consequences? Because you want to get I am payment. facing consequences in my life. I am unable to survive. Maybe no longer I will be living this life. Do you understand that? Customer Yes, is in a severe medical issue. He is a heart patient, hypertension, activity, hyperactivity, BP, depression, anxiety. Do you know how bad such kind of That's medical what, issue sir. are? I understood the patient. That's So what I I'm am not asking facing you a to be consequences right to live my life. Normally, there is a terror into the livelihood of my life, and you are asking about the CIBIL impact. What the heck the CIBIL will do for me, madam? CIBIL is not going to provide me medical expenses, medication, hospital bill. CIBIL is not going to provide me oxygen. Sir, but CIBIL only has provided you the loan, right, sir? CIBIL has provided for the your loan. emergency. Madam, CIBIL did not provide the loan. CIBIL just let the companies know what is the financial status of the customer. After checking the CIBIL, even company wanted a document such as salary slip, bank statement, job offer letter. On basis of CIBIL, you only cannot get the loan. You also submit a manual document to the company. Company will do their manual assessment, then only they will provide the eligibility to the customer. CIBIL is not the only way to get the loan. So don't talk nonsense, madam. You try to understand the customer Sir, I'm concerns. not talking anything No, nonsense. you sir. are very You're taking nonsense. this as- I have been seeing such kind of nonsense lady in my whole life. Never seen. You should understand What did I so You badly, should sir? understand the customer's concern, madam. Customer is into job loss, Yes. business loss, medical issue, and you are telling that we cannot provide the time, and you should look after for your CIBIL first. Why? Customer will look for his livelihood and basic home expenses and basic medical expenses, or he will go and check his CIBIL if it is getting impacted or damaged or whatever. How bullshit Okay, you sir, can I'm speak, explaining madam. to you about the consequences. Don't explain. Sir, this is Don't for- explain. You should tell to the customer, sir, you are such in a medical issue. Submit the supporting document of your medical issue, job losses, business losses. We will try to provide you some cooling period, and also you take care of your medical expenses and your health accordingly. What your reward was, you take care of your CIBIL, sir. It is getting damage and impact. What the hell? Sir, I'm not telling take care of your CIBIL. I said that your CIBIL score is impacting. Why you are telling me the CIBIL score is impacted? I know my CIBIL score is getting impacted. Let it be impacted. Who cares about CIBIL score? A person is suffering from a medical issue. You are asking him to take care of the CIBIL. No way, sir. It is not my wish, madam. It is my personal stuff. So you don't be my personal financial advisor. Let my CIBIL be damaged. I don't care about it. You should Okay, also sir, not is care this about it. that? Okay, sir, I'm not talking about your CIBIL score. I told you the remark. You update the remark to the company. I have a direct relation with the company. You update the remark. That is your core job. Whatever these further consequences and action will be, I will take care and respond to the company accordingly. Anything else you would like to ask? Okay, sir, and send a mail to our company that you have such kind of issue. That's how you have to speak with the customer, ma'am. That is how you have to speak with the customer. Okay. Company has a RBI guideline. Company has a RBI fair practice code. RBI even says if a customer is going through with such kind of financial and medical distress, company should cooperate and provide a holiday period to the customer, so they can take some time, arrange the money and repay to the company accordingly. You cannot say like this that we cannot provide the time, you take care of your CIBIL. What the heck? Sir, I said we can't provide time till that. You We can cannot give say you like 3 to that. 4 You days cannot time. say like that, madam. This is a recorded line. You cannot say like this. It is under RBI fair practice code that if a customer is under a genuine consequences, you have to provide the time. You cannot say like this. Okay, sir, you said mail to our company that they will Yes. give you reply in a mail itself, sir. Okay. Okay. Anything else? And right now you're in a hospital, sir. Arey nahi yaar. I am on a medication, madam.
Medication means Okay. you are suffering with medical issue and you are taking the medication day by day. Okay, sir. And Maybe then in mail to future, our company, maybe sir. in future I can hospitalize because my medical issue is not getting cured. Because I even cannot afford the medical expenses, na? Okay, sir. Anything else, madam? And can I get your any other alternate number, sir? Alternate number, no, madam. This is the only number I have. You don't have any other alternate number, sir? No, madam, I don't have any other numbers. Okay, sir. If it is any possible, try to arrange and clear within it. Again, madam, again you are saying the same thing. Sir, I'm not forcing you to pay right now, or I'm not asking you to pay it today, sir. Yes, you are forcing, madam. It is not at all forced, sir. You are forcefully applying your script on the customer. Customer has told you that, madam, please call me on 25th. I will be having some arrangement. There has been a business losses. My business clients have been given some commitment that they are going to release the fund till 25th of June. I have been given you the commitment, madam, already on this call multiple times. Okay, sir. Do one thing, as I said, share the mail to our company that. Yes, I will. Give the time till that. But you follow up accordingly what I have given you the date. Don't tell Yes, again sir, and I'll again if update it is possible, try to make it immediately. No. Call me on 25th only. You got it? Okay. Tell me, madam, yes or no, madam? Yes, sir, I got it. You shared the mail. Okay. ठीक है. Thank you. Bye. हेलो. Am I audible? हाँ, बोलिए. ऑडिबल. टेल मी. आपका नाम करे सर, राइट? हाँ, कोई शक है आपको? कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद सर. पलक आपका बात क्या कर रही नाम हूँ है? सर मैं. पलक बात कर रही हूँ सर मैं. क्या नाम है आपका? पलक नाम है सर. अच्छा, क्या हो गया बोलो? हाँ जी सर, क्रेडिट के बिहार से रिकॉर्डेबल लाइन पे आपसे बात कर रही हूँ सर. आपकी EMI के रिगार्डिंग कॉल की है सर. आपकी जो EMI है 13090 की सर. EMI नहीं आई है सर इसकी. कब तक EMI पे करने वाले हैं? आ जाएगी मैडम, इसकी EMI आ जाएगी 20 तारीख तक आ जाएगी. सर बट लास्ट आपने जो पेमेंट है वो 30 अप्रैल को करी है सर. मई में भी आपकी EMI नहीं आई है. रीजन जान सकते हैं? रीजन है ना मैडम उसका? फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इश्यू. मेडिकल इशू भी है सर. हाँ मैडम. मेडिकल इशू कौन फेस कर रहा है सर आपके सामने? मैं फेस कर रहा हूँ मैडम. आई एम ए पेशेंट फॉर BP, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट. ओके, डिप्रेशन भी आप फेस कर रहे हैं सर? डिप्रेशन, एंजाइटी, BP, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट. ओके, अभी आप ठीक है सर? नहीं मैडम, खराब है. तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे सर और आप अपनी EMI कंटिन्यू कर पाए. आपने कहा कि आप वर्किंग भी नहीं है सर? नहीं है मैडम, वर्किंग नहीं है. आपको कितने टाइम से बिजनेस लॉस में चल रहे हैं सर आप? जी, जितने टाइम से पेमेंट पेंडिंग है. सर आप 20 तारीख को कह रहे हैं पेमेंट करा दीजिए. कहाँ से अरेंज करेंगे सर 20 तक आप पेमेंट अपनी? मेरे बिजनेस का जो लॉस है वहाँ से क्लाइंट मेरा फंड रिलीज करने वाला है. ओके, सो बेसिकली आपको पेमेंट आने वाली है 20 तारीख को. तो आप कह रहे हैं 20 तारीख को EMI. लेट्स सी, अगर पैसा देता है क्लाइंट तो करवा देंगे. मतलब कोई शॉर्टी नहीं दे रहे हैं आप? ऑब्वियसली शॉर्टी नहीं होता मैडम, क्योंकि डिस्प्यूट हो जाता है ना बिजनेस में. बिजनेस में जब पैसा सही तरीके से आ रहा होता है वही एक प्रोसेस है कि आपको बिजनेस के फंड्स क्लाइंट रिलीज कर रहे हैं टाइम टू टाइम. जब डिस्प्यूट हो जाता है तो वो पैसा जो है ना मैडम फाइट करके मिलता है. तो अब मैं लीगली फाइट भी कर रहा हूँ. देखते हैं, लेट्स सी. ओके, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर. बट क्या है, आपकी EMI ऑलरेडी डिले में चल रही है. 26,000 अप्रॉक्स आप ओवरड्यू लेके चल रहे हैं. मैडम फिर ऐसा मत बोलो ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ. जब आपको पेमेंट इमीडिएटली ही मांगना है कॉल पे तो ऐसा मत बोलो ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ. देखिए, आपकी ड्यू डेट ही सर 3 तारीख की थी. समझ जाने के बाद का फर्दर प्रोसेस पता है क्या होता है? आप कस्टमर को ये बोलो कि सर आपका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारी बैंक को सबमिट करवाइए. आपका जेन्युइन इश्यू होगा देन वी विल प्रोवाइड यू ए कूलिंग पीरियड. दैट इज एज पर RBI गाइडलाइन फेयर प्रैक्टिस कोड. इसके रिगार्डिंग आप जो बता रहे हैं ना उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मैडम, क्योंकि आपको कॉल पे पेमेंट करने के लिए ही बिठाया गया है, इसलिए आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. मुझे लग नहीं रहा मैडम ऐसा होता है, क्योंकि कॉल सेंटर में यू हैव ए टारगेट बेस्ड जॉब. ठीक है, अब टारगेट बेस्ड जॉब में अगर आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि कस्टमर को कूलिंग पीरियड आप दे सकते हो अगर कोई जेन्युइन इश्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा तो.
अब पेमेंट बाउंस कस्टमर जब भी करता है जब उसका कोई जेन्युइन रीजन होता है। अब आप सबको अगर कूलिंग पीरियड बांटने लगोगे मैडम तो आपका टारगेट बेस्ड जॉब का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप जस्टिफाई कैसे करोगे अपना सैलरी? आपको बीच में रोक रही हूँ सर, बट मैं आपको चीज बता दूं, नॉर्मली आपकी ईएमआई के रिगार्डिंग कॉल की गई है कि आपकी ईएमआई पेंडिंग में चल रही है। मैडम आप मुझे नॉर्मली फॉलो अप कर रहे हो, आपके बैंक का फंडामेंटल राइट है रिगार्डिंग द पेमेंट, वो रिकवरी के लिए फॉलो अप करेगा, उसको कोई भी बंद नहीं करवा सकता, ठीक है? अभी मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया है सर, अच्छी बात है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर डिले करते हैं माइट भी लेट पेमेंट चार्जेस ऐड हो सकते हैं, तो प्लीज ज्यादा डिले मत करिए। अपने जो ईएमआई है ट्राई करके अपनी ईएमआई अपने टाइम पर करवाए सर। ऑलरेडी 3 तारीख की ड्यू डेट थी, आज 8 तारीख हो चुकी है, तो 20 तारीख से पहले ही ट्राई कीजिएगा कि अपनी ईएमआई कराए आप। बढ़िया लगा, मजा आया ये बात मैडम। प्लीज नॉर्मली अगर आप बात करेंगे तो बहुत बेटर होगा। नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैडम, बढ़िया लगा, अच्छी बात बोली आपने। इसलिए करेंगे सर तो माइट भी आपके क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस वजह से मैं आपको पहले आप बोलने वाली थी कि सर मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ लेकिन पेमेंट तो आपको अभी करवाना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपकी बात समझ रही हूँ सर, बात समझ रही हूँ। पेमेंट तो देखिए आपकी ड्यू डेट है, जा चुकी है और काफी डिले हो गया है, तो पेमेंट आपने लोन लिया तो मैडम ये अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं, ये अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है ना, कस्टमर की जो इनकम सोर्स है ना वहां से ही वो पैसा जमा करवाएगा। और दूसरी बात, अगर इनकम सोर्स है तो इनकम सोर्स मैडम अनप्रेडिक्टेबल होता है, आज है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं, ठीक है? ये चीजें बैंकों को भी पता होती है मैडम। ओके नो प्रॉब्लम। अगर आपको इतना पता है बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, कस्टमर पैसा जमा करवाएगा, ग्रेजुअली जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन रीगेन होगी, रिवाइव होगी, तो वैसे वो पैसा अरेंजमेंट करके धीरे धीरे करवा के या तो वन शॉट में सेटलमेंट करवा के खत्म कर देगा मैडम। किसी को शौक नहीं है ये लोन की घंटी को पूरा दिन बजाते रहे अपने गले में बैठ के जिंदगी भर, ठीक है मैडम? हाँ तो आप अपडेट करो, रिमार्क अपडेट करो। वैसे भी दिन भर आपके 50 कॉल आते हैं, वो तो रिमार्क अपडेट करने के बाद भी आपका कॉल आएगा, है ना? लेकिन देखिए सर, अगर जब तक आप ईएमआई नहीं कराएंगे ना गारंटी नहीं होती। हाँ ये बात मैडम बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अगर आप आपने खुद ही साबित कर दिया है, जो मैं प्रूव करने वाला था ये कॉल पे वो आपने खुद ही साबित कर दिया मैडम अपने मुंह से। बहुत अच्छी बात बोली मैडम आपने, वेरी नाइस मैडम। कुछ नहीं मैडम, समझने वाले समझ गए होंगे मैडम। नहीं, मैंने आपको बोला सर कि कॉल जब तक आपकी ईएमआई नहीं आती है कॉल सर आपको जाती है सर। हाँ मैडम मैं समझ गया मैडम, बहुत अच्छी बात है मैडम। कॉल इसीलिए आपको जाती है सर। जी जी मैडम। ट्राई करिए अपने एंड से, अगर आप अपनी ईएमआई क्लियर करेंगे सर आपको कॉल ऑफ कोर्स नहीं जाएगी, क्योंकि जो कॉल आप नहीं कर रहे हैं मैडम सब पेमेंट पूरा है ना, पूरा जो डिस्प्यूट है ना मैडम वो पेमेंट का ही डिस्प्यूट है मैडम, है ना? और पेमेंट नहीं करने का एक रीजन भी है और जेन्युइन रीजन है मैडम। पेमेंट नहीं करने का जो रीजन होता है ना वो जेन्युइन रीजन होता है मैडम, है ना? अभी जेन्युइन रीजन है तो आपको भी आरबीआई ने यही बोला है कि अगर किसी कस्टमर का जेन्युइन रीजन है तो कंपनी को कोऑपरेट करना, फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत कस्टमर को थोड़ा टाइम दे देना, पैसा अरेंज करके वो धीरे धीरे करवा दे, वही एक प्रोसेस है मैडम। लीगली जो प्रोसेस है आरबीआई की तरफ से टू ऑल द बैंक्स एंड लेंडर्स। अभी आप बोलोगे कि नहीं हम तो कॉल करते ही रहेंगे आप जब तक पेमेंट नहीं कराओगे, दैट मीन्स व्हाट कि आपने ये कॉल पे खुद ही साबित कर दिया कि हम कोऑपरेट नहीं करने वाले, चाहे करने वाले हो, बेड रेस्ट पे पड़े हो, आपकी कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, हमें तो पेमेंट लगेगा और पेमेंट के लिए हम तो आपको कॉल करेंगे, होम विजिट करेंगे, जो भी कर सकते हैं वो सब कर लेंगे, है ना? आप यही बोल रहे हो ना मैडम? तो आप कोऑपरेट नहीं करोगे, मेरा ऐसा कुछ सच मेरा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपसे कि आप कोऑपरेट करने वाले हो। आप तो है अपना कॉलिंग पे कॉलिंग करते रहिए मैडम। अब मैं पेमेंट जो है अपने हिसाब से ही करवाऊंगा मैडम जी, मुझे आपकी सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जब आपने बोल दिया ना मैडम कि आपने ये बात बोल दी ना अगर कॉल पे कि नहीं हम कॉलिंग करते ही रहेंगे जब तक पेमेंट नहीं होगा कॉल आता ही रहेगा, तो मुझे समझ में आ गया सामने वाली बंदी शी इज नॉट इंटरेस्टेड कोऑपरेटिंग विद द कस्टमर, देन व्हाई शुड आई आस्क और गिव हर टाइम टू स्पीक? क्यों? आप मेरे हित में तो नहीं बोलने वाले हो, आप तो कंपनी के हित में बोलने वाले हो, तो मैं आपकी क्यों सुनूं? देयर इज नो बेनिफिट एंड वैल्यू एडिशन फॉर द कस्टमर अगर वो आपकी सुनेगा। आप तो बस पेमेंट करोगे, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी सुनने के लिए मैडम जी। आप तो दूसरे कॉल की तैयारी करो, आप दूसरे कॉल की तैयारी करो। शांत नहीं होता मैडम, मैं ऐसा ही हूँ मैडम, मैं नॉर्मली बात भी नहीं करता मैडम, मैं ऐसी बात करता हूँ मैडम, क्योंकि जो अपना अधिकार होता है ना मैडम वो छीन के लिया जाता है। अपना अधिकार है ना, अपने जो राइट्स होते हैं ना, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट।
अगर मैं चुप रह जाऊंगा तो मैडम आप बोलने लगोगी, आप बोलने लगोगी तो मैडम आपकी चलेगी, मेरी तो चलेगी नहीं ना मैडम। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप चुप हो जाओ और आप दूसरे कॉल की तैयारी करो मैडम। डायलर तो अभी फिर 5 मिनट में दूसरा कॉल हिट कर देगा, है ना मैडम। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आपको ऐसा लगना चाहिए मैडम जी कि आप ये कॉल को डिस्पोज कर दो, क्योंकि हर कॉल को, हर कस्टमर को आप रिपीटेडली 50 कॉल तो करते हो। एवरेज कॉल का ड्यूरेशन 5 मिनट है, ऑलरेडी ये 5 मिनट हो गया मैडम, है ना। 5 मिनट आपका ये कॉल ऑलरेडी चल गया मैडम जी, 8 मिनट चल गया मैडम आपका ये कॉल ऑलरेडी मैडम जी। तो एवरेज जो है टाइम ड्यूरेशन वो है 8 से 10 मिनट। अभी एक कस्टमर को आप 50 कॉल कर रहे हो तो 10 मिनट का एवरेज भी टाइमिंग है। तो मैडम एक कस्टमर के ऊपर आप 2 घंटे का टॉक टाइम लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप कस्टमर को मेंटली कितना प्रेशराइज और ट्रिगर कर रहे हो कि अगर वो आपको 20 तारीख का भी टाइम सपोज दे रहा है तो आप उसको जो है पूरे दिन में 50 कॉल करके 2 घंटे उसके टॉक टाइम देके उसको जो है इतना डिस्टर्ब करते हो कि वो 20 तारीख का पेमेंट देने वाला भी इंटेंशनली वो अब ये सोचने लगेगा कि यार ये लोग तो मेरी परेशानियों को अपनी तरफ से समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना ये समझने की कोशिश करते हैं, ये इंटेंशनली भी नहीं समझने वाले हैं। तो एक काम करते हैं 20 तारीख को भी नहीं करेंगे, अब तो हम इसको जो है 1 साल 1.5 साल बाद सेटलमेंट करवाएंगे। 80-90% का डिस्काउंट लेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे और 10% 15% कंपनी को देके कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे मैडम। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है ना मैडम, आप जैसे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के चक्कर में मैडम कंपनी का बहुत पैसा डूबता है मैडम, सच्ची बता रहा हूँ मैडम लिटरली। अभी अगर आप सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे से अगर इन रिवर्ट में इस तरीके से बात करती ना तो मुझे भी समझ में आता कि हाँ ये जो पर्सन है ये एक DRS सर्टिफाइड पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कस्टमर ने मेडिकल बोला ना मैडम, मेडिकल एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी एज पर द RBI गाइडेंस बहुत ही सेंसिटिव ग्राउंड होता है मैडम। जब भी मेडिकल इश्यू होता है ना कस्टमर का मैडम, है ना, फाइनेंशियल लॉसेज रीगेन हो सकता है मैडम, लेकिन मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस कैन नॉट बी मार्क्ड एज सिली। आप बोलने तो दीजिए। मेडिकल इशू मैडम, मेडिकल इशू का मतलब क्या होता है, आपका रिवर्ट ये आना चाहिए था कस्टमर को कि सर ईमेल आईडी पे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाइए, मैं बैंकर को आपका केस कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। आपका जवाब ही गलत है मैडम कस्टमर को। जब कस्टमर ने मेडिकल आपको बोल दिया तो कस्टमर को आपको ये बोलना चाहिए था सर आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ईमेल पे सेंड करवाइए, मैं आपका केस एक्सेप्शनली बैंकर को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ ताकि आपको ग्रेस पीरियड मिल सके कंपनी की तरफ से डायरेक्टली। आपका जवाब क्या है, नहीं आपका कोई भी हो पेमेंट से रिलेटेड आपकी समस्या, मेडिकल है, कुछ भी है, कॉल तो आती रहेगी, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे ऑन द कॉल तो कस्टमर आपकी क्यों सुनेगा, बताओ क्यों सुनेगा कस्टमर आपकी। मैं नहीं सुनूंगा आपकी, मैं क्यों सुनूं, बिकॉज आप मेरे कंडीशन को सीवियरिटी को समझ ही नहीं रहे हो। आपको तो पेमेंट 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 करना है तो करते रहो पेमेंट पेमेंट। मेरे लिए आपके ये पेमेंट की स्क्रिप्ट को सुनना ऑन कॉल मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है ना मैडम। आप पेमेंट करते रहो ना मैडम जी, कोई बात नहीं। आप जैसे एजेंट के बिहेवियर की वजह से मैंने आपको बताया ना 20 तारीख का जो पेमेंट होने वाला ना वो 20 तारीख का भी पेमेंट नहीं हो पाएगा मैडम। वन वे ही बात होती है मैडम, ये कलेक्शन कॉल है मैडम, ये वन वे ही बात होती है। और एक्स बकेट में आप जैसे थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना, दैट मीन्स कि वन वे ही कस्टमर अपनी बात को रखे और आपसे लड़ झगड़ के जो है ये केस को आगे कैरी फॉरवर्ड करे। आप ना मेरी सुनने वाले हो, आपको कॉल पे इतना भी अगर बोल दिया कि ठीक है सर आप पेमेंट मत करवाइएगा, आपके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करवाइएगा मैडम, आपका क्वालिटी एनालिस्ट आपको फेटल दे देगा मैडम और आपको कॉल पे से PIP पे डाल देगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में, वापस से आपको ट्रेनिंग में बिठा देगा। अगर ऐसा भी बोल दिया कि आप पेमेंट अपने अकॉर्डिंगली करवा लेना, तो आपका सिस्टम ही ऐसा है। ये जो सिंडिकेट पूरा बना रखा है ना कॉल सेंटर का मैडम, ये बनाया ही इस तरीके से कस्टमर को पूरी तरीके से मेंटली प्रेशराइज ट्रिगर करने के लिए। अगर कस्टमर का सीवियर टू सीवियर मेडिकल इश्यू, सीवियर टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू पीपल, तो आपकी कस्टमर क्यों सुनेगा, व्हाई, क्यों सुनूं मैं आपकी, बताओ। एक रीजन मेरे को बता दो आप, एक भी रीजन आप मेरे को नहीं बता सकते मैडम, नहीं बता सकते, यही मैंने आपको बोला ना। क्या बताने का मौका दूं मैं आपको, यू टेल मी नाउ, क्या बताने का मैं आपको मौका दूं। बोले जा रहे हो बिकॉज आपने जिस तरीके से काउंटर किया कस्टमर को, दैट इज वेरी पैथेटिक। बहुत ही पोलाइटली बात कर रही हूँ। अरे पोलाइटली बात करना नहीं होता मैडम, इट इज नॉट अबाउट दैट आप पोलाइटली बात कर रहे हो, इट इज अबाउट की द वे यू आर काउंटरिंग टू द कस्टमर ऑन बेसिस ऑफ द सीवियरिटी ग्राउंड्स ऑफ द कस्टमर, दैट इज वेरी पैथेटिक मैडम। You cannot say like this to any customer on basis of the medical issues and consequences he is going through. You cannot say like this कि आपका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कॉल तो आती ही रहेगी। What do you say? Why do you say like this कि कॉल तो आती रहेगी? चीज आपको नहीं बोली कि करना पड़ेगा सर, मैंने अरे कॉल आती रहेगी का मतलब क्या है? हो रही है
मैंने बोला सर, अगर आपने बोला कॉल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये क्या कॉल पे कॉल करना, क्या आपके पास क्या हथियार मिल गया है क्या आपको? मिस्टर शंकर, आप अगर नॉर्मली बात करेंगे सर। मैं नॉर्मली ही बात कर रहा हूँ मैडम, मैंने आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, इसीलिए ही मैंने आपको जो है अपनी समस्याओं के रिगार्डिंग पूरा मैंने आपको डिटेल में चेकलिस्ट दिया। सुना है सर मैंने आपकी समस्या। अरे आपने सुना है तो बहुत बड़ा काम नहीं किया मैडम, आपने सुना है, लेकिन द वे यू हैव टू काउंटर टू द कस्टमर दैट शुड बी डिफरेंट। आपको बोला, आपने किस प्रकार से कस्टमर को बोला कि आपको कॉल पे कॉल आती रहेगी? व्हाई यू हैव सेड दैट? मैंने किस प्रकार से बोला सर? मैंने व्हाई यू हैव सेड दैट मैडम? कि मैं आपकी बात यू कैन नॉट से लाइक दिस टू ए कस्टमर कि आपको कॉल्स आती रहेगी। सर मैं आपकी समस्या भी समझ रही हूँ और मैंने आपको रिस्पॉन्स। आप इंटेंशनली कस्टमर को बार बार कॉल करोगे? हु गिव यू द राइट? मैंने आपको किया पर्सनल, एज पर IT एक्ट, एज पर ट्राई, आप बार बार कॉल कैसे कर रहे हो कस्टमर को? हु गिव यू द राइट? कैसे बोल दिया आपने कि आपको बार बार कॉल आते रहेंगे? व्हाई? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका टारगेट बेस्ड जॉब है मैडम, आपकी सैलरी जस्टिफाइड करने के लिए आप मेडिकल इश्यू में जो कस्टमर पहले से ही ग्रस्त है उसको और परेशान करोगी, अभी थैंक यू बोल के कॉल काट दोगी। इतना ही आता है मैडम, इससे अलावा क्या आता है अपने को मैडम? दूसरे कॉल पे जाओ, दूसरे कॉल पे जाओ, बैक टू कॉल्स, दूसरे कॉल की तैयारी करो, मुझे और कॉल करो, मैं आपके सारे कॉल्स रिस्पॉन्स करूंगा। जितने आप कॉल कर नहीं सकते उतने मैं आपके कॉल उठा लूंगा। करो आप बिंदास कॉल, देखता हूँ आपके अंदर कितना दम है, कितनी कॉल आप कर सकती हो, करो। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू। नहीं समझ सकते आप लोग कस्टमर की समस्याओं को, नहीं समझ सकते क्योंकि ये आपके सिस्टम के अगेंस्ट है। अगर समझने लगे तो आपकी जॉब चली जाएगी मैडम। 2 मिनट लगेगा आपके TL को आपको PIP में डालने के, PIP के पास ट्रेनिंग, वापस से अगर पेमेंट नहीं निकाला, यही अगर करने लगे तो फिर से आपको ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में कंपनी के बाहर। आई एम हैविंग ऑलरेडी ए गुड डे, बट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इफ यू विल बी हैविंग गुड डे और नॉट। इफ सर हेलो। हाँ सर गुड आफ्टरनून सर, मैं जावेद बात कर रहा हूँ इंडिया में ICICI बैंक। क्या हुआ? ये कॉल आके क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड होता है सर। आप हाँ बोलिए भाई, क्या हो गया? सर आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पेंडिंग है सर, उसके लिए कॉल किया था। क्रेडिट कार्ड का नंबर बोलो भाई। 2001। 2001। हाँ। कितना पेमेंट पेंडिंग है? आपका देखिए मिनिमम आके 17,310 रुपीज पेंडिंग है सर। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आके 11,910 रुपीज है सर। ओके ओके, कुछ रिमार्क फीडबैक नहीं है क्या भैया आपके पास? सर आप बोले थे फंड इश्यू है, मैं 25 तारीख को पेमेंट करेगा करके बोल रहे थे। कॉल डिस्कनेक्ट करे हैं। कॉल डिस्कनेक्ट करे हैं? अरे कॉल तुम्हारा रिस्पांस करे हैं भाई, कॉल रिस्पांस करे हैं और यही बोले हैं कि पेमेंट तुम्हारा 25 तारीख तक होगा। अभी फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस और मेडिकल इश्यू है करके। हाँ मैं वही बताया था ना अभी। तो अपडेट करो मियाँ यार, हमारे को 25 को कॉल करो भाई। सर नहीं उतना टाइम नहीं है सर। क्यों बोलेगा? तो एटलीस्ट प्रीवियस मंथ का तो भी कर लीजिए सर। तो पेमेंट नॉट पॉसिबल भाई। क्यों सर, क्या आपका इश्यू क्या है सर? इश्यू यही है, बताया फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इश्यू, मल्टीपल डेप्ट। एक काम करिए सर, आप फ्रेंड और फैमिली के पास लेके पेमेंट कर लीजिए ना सर। क्यों, फ्रेंड और फैमिली ने दिया है क्या मुझे पैसा? फ्रेंड और फैमिली ने मुझे पैसा दिया है क्या? नहीं उनको पूछ के पेमेंट कर लेंगे। या आपने उनको गारंटर रख के पैसा दिया है क्या? नहीं तो फिर उनका बात क्यों कर रहे हो भाई? मैं सजेशन बोल रहा हूँ सर, सुनिए। मैं सजेशन आप गलत दे रहे भाई। क्यों गलत है सर? आप फ्रेंड गलत सजेशन दे रहे हैं आप नहीं बोल सकते, किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के बारे में आप नहीं बात कर सकते। ओके सर, मैं जस्ट सर सुनिए, विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, the other third party person is not included in this account credit facility with your company. I myself is a wholesome authorized signer. So why you are including somebody else? What kind of suggestion is this? It is illegal. No illegal. Yes, it is illegal. सर आप किसी और व्यक्ति का नाम भी नहीं ले सकते, फ्रेंड फैमिली का नाम भी नहीं ले सकते, ना आप उनको भी बता सकते लोन के बारे में, डिटेल्स के बारे में, कोई भी। सर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट पेमेंट उनको पेमेंट तो मैं ही आपको देने वाला हूँ, मैं ही अरेंज करके देने वाला हूँ 25 तारीख को, यही मैं आपको बता रहा हूँ। बट बैंक टाइम उतना टाइम नहीं प्रोवाइड करती है ना सर। बैंक अगर टाइम नहीं दे सकती हो तो बैंक का लुकआउट है।
हमको रही है सर पूछने के लिए, हमको रही है RB1 गाइडलाइंस के हिसाब से हमको रही है सर, मैं उसके लिए क्या राइट से, क्या राइट से, ऑन टाइम में आपको पता है ना सर, आपको पता है ना क्या राइट है तुमको RBI गाइडलाइन के हिसाब से? पेमेंट आपको पूछने के लिए हमको रही है ना सर। आओ तो पेमेंट पूछो भाई, लेकिन फालतू का आप मेरे को सजेशन मत दो कि इससे ले उससे ले लो। अरे यार ये लंगर बट रहा है क्या भाई गुरुद्वारे की लाइन के बाहर? चल जाके खड़े हो जाओ और ले लेके आ जाओ भर भर के। आजकल के टाइम पे कौन पैसा देता है भाई? सर वो आपका इश्यू है सर। वो आओ मेरा इश्यू है तो मैं अपने इश्यू को खुद ही रिजॉल्व करूंगा, कोई बाहर वाला नहीं करेगा आके। हाँ मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ। तो आपका ड्यू डेट 20 है ये महीने में 26। हाँ तो आपको पता है कि अनप्रोडिक्टेबल इश्यू होता है कस्टमर के साथ में। अरे तुरे मत कर रहे, आवाज नीचे करके बात कर। अरे तुरे मत कर, कस्टमर से बात करने का तमीज नहीं है, यही सिखाया तुमको IDFC फर्स्ट बैंक ने? सर मुझे तमीज है, आपने DRA किया या नहीं किया? आर यू DRA सर्टिफाइड? यस। टेल मी yes or no, are you DRA certified or not? Certified. If you are DRA certified, then how much hour training you have been taken under DRA procedure? Tell me sir. वो सेकेंडरी है सर आपको। Why secondary? I want to know, I want to verify. Right party confirmation is my right to do so. सर From where? From which institution you have done the DRA? Tell me now. सर वो आपको You don't even know the institution name. You don't even know what is the hour timing of the DRA training, and how you can say that you have done the DRA? That means you are non-DRA. If you are non-DRA, you cannot even do a recovery call to the customer. Do you know that? That's RBI guideline, भाई. हाँ सर मुझे भी पता है सर। Hello, tell me from which institution you have done the DRA? Tell me now. I want to know that. वो मेरा पर्सनल है सर वो। It is not personal. It is meant to give. It is meant to be eligible to speak with the customer, and it is publicly precise to be customer-centric company. And you are working in a customer-centric company, so you should need to respond to the customer as well. You cannot say like this. It's your personal. उसी का आपको ये दिक्कत है सर? मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे को जानना है कि मैं सही पर्सन से बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अरे तुरे करके बात कर रहे, ओवरलैप कर रहे, आवाज ऊंची करके बात कर रहे, तो एक DRA सर्टिफाइड बंदा ऐसे बात नहीं करता है सर। नहीं सर, मैं आराम से बात करो, मैं अरे तुरे नहीं बात किया हूँ। अभी आपने अरे बोले भैया हमारे को पता है, अरे तुरे मत करना, कॉल पे बात करो, तमीज से बात करो, कस्टमर से बात कर रहे। तुम्हारा निजी व्यक्तिगत पैसा तुमने कस्टमर को नहीं दिया है, कंपनी और कस्टमर का दोनों का रिलेशन है। इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस। अगर पेमेंट बाउंस होता है, पेमेंट डिले होता है, कस्टमर के पास जो है पूरा राइट है पेमेंट को जो है करने का, और बैंक के पास फंडामेंटल राइट है पेमेंट को रिकवर करने का। पेमेंट इमीडिएटली नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लेके वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। आपको सीरियसली और पर्सनली नहीं लेना है। सर सुनिए, आपको 1 मंथ टाइम दे चुके हैं ना सर? आपको कौन सा टाइम दे चुके हैं? किधर है? कोई रिटर्न में कंफर्मेशन है आपके पास, या हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपने कोई रिटर्न में भेजा है क्या कि हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे करके? सर 1 मिनट सर, आपने हमको कभी रिटर्न कंफर्मेशन दिया है कि आप हमको 1 महीने का टाइम दे रहे हो? ये बताओ मुझे। आपने कभी भेजा है ईमेल आईडी पे, मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, कि आप मुझे 1 महीने का टाइम दे रहे हो? भेजा है आपने? 1 महीने से जो पेंडेंसी आप देख रहे हो क्रेडिट कार्ड में, 1 महीने का पेंडेंसी है, तो उसमें आपने कॉल, होम विजिट, नोटिस सेंड करना, ईमेल रिमाइंडर करना, व्हाट्सएप रिमाइंडर करना, हर एक चीज आपने किया है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने टाइम दिया है? तो प्रोसीजर उसके लिए होता है। अगर आपने किसी के केस में DNC लगाया, डू नॉट कॉल, डू नॉट फॉलो अप, तो उसमें प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया जा सकता। जो केस में आपने टाइम नहीं दिया, वो केस में आप फॉलो और रिमाइंडर चालू रखते हो। आपको इतनी सी जानकारी नहीं है। मैं अभी आपसे वापस पूछ रहा हूँ, आर यू DRA सर्टिफाइड और यू आर नॉन DRA? मैं DRA सर्टिफाइड सर। सो यू डोंट इवन हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता बैंकिंग एटिकेट्स क्या है, आपको पता नहीं कि बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। आप कैसा बात कर रहे भाई? मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोला? आराम से बात करना ही पड़ेगा, ज्यादा चिल्ला पुकार करके हमारे साथ बात नहीं कर सकते भैया। मैंने आपको क्या बोला? हेलो शट अप। मैंने आपको क्या बोला? 25 तारीख को कॉल बैक का अपडेट डालो। पहले तुम्हारी बैंक को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम भेज के तुम्हारे ऑलरेडी इन हाउस बैंकर से सारी चीजें इन्फॉर्म कर चुके हैं। आप थर्ड पार्टी हो, आपको मैं वापस से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अपनी बैंक को रिमार्क डाल दो, 25 तारीख का कॉल बैक डालो, ठीक है? हेलो, चला गया क्या भाई कॉल पे? नहीं कॉल में हूँ सर। ठीक है सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ।
हाँ ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स।